ضلع بھر کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد کو 100% یقینی بنائے، ناجائز منافع خور اور ملاوٹ مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بھرپور کارروائیاں جاری رکھے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیرف گنج چدر سے۔ جی شیرف گنج، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ننکانہ صاحب، حکومت پنجاب کی واضح ہدایت کی روشنی میں ضلع بھر کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخنامے پر آمد درآمد کو 100% یقینی بنائیں، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائیں اور سبزیوں و پھلوں سمیت دیگر اشیاء خوردہ نوش کی قیمتیں بلا جواز نہ بڑھنے دیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے ضلع بھر میں گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ مافیا خلاف جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے بتایا کہ ضلع بھر کے پرائس مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر گراں فروشی اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ متعدد دکانوں کو وارننگ نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخنامے پر آمد درآمد کو 100% یقینی بنائیں تاکہ عوام کو حکومت پنجاب کی جانب سے بہتر ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام الناس کو ریلیف دلوانے کے لیے سبزی منڈیوں کے دورے کیے جا رہے ہیں۔ تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی مارکیٹوں میں عوام الناس کو ریلیف دلوانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے سختی سے ہدایت جاری کی کہ اشیاء خورد و نوش کے ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر ابیضا نہ کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی شیرف گنج چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن سانگلہ ہل کا اجلاس ملک عثمان ناظم المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن سانگلہ ہل کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیرف گنج چدر سے۔ جی شیرف گنج، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن سانگلہ کا اجلاس ملک عثمان ناظم المصطفیٰ بلڈ ڈونیشن سانگلہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے 4 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور بلڈ ڈونیشن کے کام کو تیز کرنے کے لیے آئندہ کا لاہ عمل پیش کیا گیا تاکہ اپنے شہر سانگلہ ہل میں مریضوں کو خون کے حوالے سے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر ڈاکٹر کاشف لیب انچارج، حمزہ طاری، امیر حسین، میاں نشاہر، انمان مصطفی، ناصر علی، محمد یاسین، ملک امیر، ادارت المصطفیٰ حلقہ سانگلہ ہل بھی موجود تھے۔ جی شیرف گنج چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ تاندلیہ والا کے نواحی قصبے ستیانہ بنگلہ میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت زاہد بشیر انجم کے ڈیرے پر سیمینار کا انعقاد ہوا۔ کماد کی بڑھوتری کے سلسلے میں ہونے والے سیمینار کی صدارت چودھری عبدالحمید ڈویژنل ڈائریکٹر محکمہ زراعت فیصل آباد نے کی۔ مختلف آفیسر نے کماد کی فصل کی بڑھوتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے پر زور دیا۔ رپورٹ کرتے ہیں تحصیل رپورٹر چودھری اظہر شاہین۔ جی اظہر شاہین، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ زراعت کے زیر اہتمام مرکز ستیانہ میں وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کماد کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے زاہد بشیر انجم کے ڈیرے پر ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت ڈویژن ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد چودھری عبدالحمید نے کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کماد ہماری اہم نقد آور فصل ہے۔ دنیا میں کماد کی فی ایکڑ پیداوار 2000 من سے زائد ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اس کی اوسط پیداوار 650 من فی ایکڑ ہے۔ کاشتکار جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مخدوم حسین سابقہ ڈائریکٹر شعبہ گندم فیصل آباد نے اپنے خطاب میں کاشتکاروں کو گندم کو تین پانی دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر گندم کو آپ پاشی زیادہ کریں گے تو فصل کی پیداوار کم ہوگی۔ اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع فیصل آباد خالد محمود نے کسانوں کو کماد اور گندم کے کھیتوں میں کسان دوست کیڑوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ کاشتکار کسان دوست کیڑوں کا کارڈ محکمہ زراعت توسیع فیصل آباد سے مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر پر شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد گلزار شاد نے کہا کہ کاشتکار ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ محکمہ زراعت کے دفاتر کاشتکار کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ یہ اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا کر ملک کی معیشت کا پہیہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ جی میرے ایریے میں 4.5-5 لاکھ کھاد چاہیے۔ اگر کوئی ڈیلر باہر سے کھاد لاتا ہے تھوڑی بہت، تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے مقصد اگر وہ 35-30 روپے جو نوٹیفائڈ ریٹ ہے اسی پہ سیل کرتا ہے، اس میں بھی اس کو 10-20 روپے اس کا کرایہ لگ جاتا ہے 1629 کے بعد۔ تو ہم نے ایج دیا کہ اس کی قیمت جو ہے
जद्दा से आतिफ अली भट्टू की रिपोर्ट। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जद्दा के जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद बशीर की जानिब से मार्केटिंग के बहुत बड़े नाम रियाज अहमद मेमन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रियाज मेमन अरसा 20 साल से पाकिस्तानी मसनूआत की निजी कंपनी में बतौर मार्केटिंग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि फाइनल एग्जिट पर पाकिस्तान जा रहे हैं। उनके एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब की सदारत राजा बशीर ने की। तकरीब में पाक मीडिया ज़िम्मेदारान नूरुल हसन गुज्जर, जहांगीर खान, इरफान खटाना और हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम के चेयरमैन चौधरी दिलपजीर, फाइनेंस सेक्रेटरीज इम्तियाज़ कुरैशी और उनके करीबी साथियों शाइक मेमन, उमर तलत, अनम हुसैन, फैज़ हुसैन, मोहम्मद सादिक, असगर खान और दीगर ने रियाज मेमन की कम्युनिटी और मार्केटिंग के शोबे में उनकी खिदमत को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जिस पर रियाज मेमन ने तमाम अहबाब और राजा बशीर का तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अच्छी यादें और आप सबकी मोहब्बतों के हमरा अपने वतन वापस जा रहा हूँ। अपने मुल्क जाकर याद तो सबकी आएगी। एक बेहतरीन वक्त गुजारा है सबके साथ। तकरीब के आखिर में राजा बशीर ने तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन कम्युनिटी और मार्केटिंग खिदमत पर रियाज मेमन को शील्ड पेश की। सरगोदा तहसील हेडक्वार्टर भलवाल में थैलीसेमिया सेंटर और जदीद एक्सरे मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। एक्सरे वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने किया। इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मन्नान चौधरी से। जी अब्दुल मन्नान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सेफ लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम THQ अस्पताल भलवाल में थैलीसीमिया सेंटर और जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी नदीम अफजल चंद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए नदीम अफजल चंद, MS खालिद महमूद गोंदल, चेयरमैन सेफ लाइफ वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर तरवीज़ सुलहरी का कहना था कि रियासत शहरियों के लिए माँ का दर्जा रखती है। रियासत को एक माँ का किरदार अदा करना चाहिए। थैलीसीमिया के बच्चों में इजाफा को रोकने के लिए शादी से पहले लड़का और लड़की का टेस्ट करवाना अशद ज़रूरी है। इस सिलसिला में हमें आवाम में शऊर पैदा करना होगा। हमारी लापरवाही की वजह से थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चे 1 लाख से 5 लाख तक पहुँच गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत सबसे बड़ा सोशल वर्क है। दुखी लोग सबसे ज़्यादा सियासतदान के पास आते हैं या रफ़ाई इदारों के पास। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इज्जत सोशल वर्क ने दी। उन्होंने शौकत खानम हस्पताल बनाया। तकरीब से जाहिद इकबाल गौरी, चौधरी नासिर अली, शेख रिजवान अरशद ने भी खिताब किया। जी। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की हिदायत पर मुआशरती नासूर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर। जी परवेज इकबाल चद्दर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख की हिदायत में मुशर्रती नसूर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 13 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए, जिनके कब्जा से 300 लीटर शराब और 4 बरामद हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख का कहना है कि इन मुशर्रती नसूर मंशियात फरोशों से चिन्योट की धरती को पाक करना ही मेरा मिशन है, ताकि नौजवानों की नस्ल जिंदगी इन मुशर्रती नसूर से बच सके। मंशियात फरोशों के खिलाफ थाना बुआना, रजोवात, लंगराना, लालियां और चनाब नगर में मुकदमा दर्ज किए गए। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दर, आवाज़ न्यूज़, तहसील बुआना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग की जानिब से अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके हथेजी में फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें बहावलपुर के डॉक्टरों ने मरीजों को चेक किया और मुफ्त दवाएं भी दी। मजीद जान लेते हैं आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आमिर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका हथेजी में तहरीक इंसाफ लेबर विंग के ताउन से फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और सबका MP सरदार मलिक जहां वालन साहब ने किया। तहरीक इंसाफ लेबर विंग तहसील सदर डॉक्टर इमरान अंसारी भी इस मौके पर मौजूद थे। ज़ेर निगरानी हल्का PP 251 तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सदर कारी सलीम समेजा और तहरीक इंसाफ लेबर विंग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भी ने फी सबीलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जिसे गरीब आवाम ने खूब सराहा और खुशी का इजहार किया और दुआएं देते रहे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर, आवाज़ न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। मेरा इलाका है, मैं आया हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको सेंस आ गया है कि इलाज करवाना। मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, माएँ भी बैठी हुई, बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, मेरे मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं। तो ये
1 घंटे का नोटिस, 1 घंटे में डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, इमरान भाई ने कहा, तो मैंने सलीम भाई को फ़ोन किया कि फौरी तौर पे आप लोगों में का ऐलान करवा दें स्पीकर पे, या वैसे कोई पैगाम दे दें, उनका मुफ्त इलाज होगा और दवाएँ भी मुफ्त होगी। तो मैं जब आया हूँ तो कैंप पे काफ़ी लोग बैठे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि लोगों को शऊर आ चुका है, लोगों को पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब सच्चाई आती है माशरे में तो हर बंदा एतमाद करता है, और जब झूठ बोला जाता है, आज मैं अगर ऐलान करवाता और डॉक्टर साहब ना होते तो आप सब लोगों को कहते हैं कि ये भी झूठा है। थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई, भारी मिकदार में चर्स, शराब और असला नाजायज बरामद। आवाज न्यूज के नुमाइंदे जहूर अहमद निजामी की तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग की सरबराही में जिला पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों में मसरूफ है। एसएचओ थाना सदर हारूनाबाद बशीर अहमद इंस्पेक्टर की सरबराही में मतलूब हुसैन एएसआई ने पुलिस टीम के हमरा मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2590 ग्राम चर्स बरामद हुई। अमजद अली एएसआई ने चक नंबर R8665 में कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से शराब 35 लीटर मालात कशीद और चालू भट्टी बरामद हुई। चक नंबर R8465 में कार्रवाई के दौरान मुलजिम मोहम्मद अमजद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का इंदराज करके मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग का कहना था कि जिला पुलिस अफसरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तहसील साहिवाल खूनी चौक में शाहपुर रोड ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर THQ तहसील साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बहाक हो गया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस चौक में ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए जाएं ताकि मजीद जिंदगियों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। रिपोर्ट मोहम्मद इसाक, साहिवाल, सरगोदा, पाकिस्तान। शाहकोट DPO ननकाना साहब इस्माइलुर रहमान खाड़क की हिदायत पर थाना सिटी शाहकोट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। दौरान स्नैप चेकिंग मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने मुलजिम हसन रजा के कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम खुद भी मंशियात नोशी का आदी बताया जाता है। DPO ननकाना साहब की तरफ से SHO थाना सिटी शाहकोट तसव्वुर मुनीर और हमराही टीम को शाबाशी दी और कहा मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वाले माशरती नासुर है। मंशियात फरोशों का जिला भर से खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट मोहम्मद इदरीस पवार, नुमाइंदा आवाज न्यूज शाहकोट। सरगोदा शहर भर में आटे का शदीद बहरान, शहरी सहूलत बाजारों में लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। माफिया जीत गया, आवाम हार गई। सरगोदा जिले इंतजामिया ख्वाबो खरगोश के मजे लेने लगी। कोटा कम होने से माफिया ने मनमानी रेट वसूल करने शुरू कर दिए। बद इंतजामी की इंतहा अफसरान बाला सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर लाइल, शहरियों की दुहाई। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद आवाज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल मन्नान चौधरी से। जी, क्या कहना है लोगों का? इस वक्त जो है सहूलत बाज़ार जो है आवाम के लिए जो है वो दुश्वारी बाज़ार बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आवाम की लंबी लंबी लाइनें हैं। सुबह 9 बजे से लोग आए हुए हैं, उनको अब तक आटा नहीं मिला। बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त आटा ले सके हैं। आवाम इस वक्त परेशान है, चीनी गायब है, आटा गायब है। इसी सिलसिले में लाइन में लगे हुए लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी जनाब। भाई 2 दिनों आटे लभ जा, बड़े जलील हो रहे हैं। अखबार में आटा लभदा नहीं पिया। सवेर दे लाइन चलोते हुण मसा मुँह वेखे वो लभ गया थे। वो कहते एक गट्टू मिलेगा 10 किलो वाला। बड़े परेशान है जी, माड़े बंदे जी, आटा नहीं लभदा पिया समय से। देखिए सर, लोगों का यही कहना है कि इस वक्त आटा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, सारा दिन लाइन में लगते हैं और घर के जो है चूल्हे इस वक्त जो आटा ना होने की वजह से ठंडे हो रहे हैं। जी जद्दा सऊदी अरब से आतिफ अली भट्टू की रिपोर्ट। सुमेरा अजीज क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल NCC ने दिलचस्प मुकाबले के बाद अपने नाम कर लिया। फाइनल की मेहमान खुसूसी मारूफ सऊदी सहाफ़ी सुमेरा अजीज और उनके शोहर जाहिर सिकंदर थे। फाइनल मैच की तकरीब में पाक मीडिया जिम्मेदारान समेत बड़ी तादाद में सऊदी और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ने शिरकत की।
जद्दा में जारी सुमेरा अजीज क्रिकेट चैंपियनशिप में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में एनसीसी और रॉयल फाइटर्स के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें रॉयल फाइटर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में पहले खेलते हुए 100 रन्स का हदफ दिया। जवाब में दिलचस्प मुकाबले के बाद एनसीसी ने 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। फाइनल में शानदार बल्लेबाजी पर अली शाह को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अल कुरैशी ने इख्तितामी तकरीब में मेहमानों का इस्तकबाल किया और लीग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। और मेहमान खुसूसी सुमेरा अजीज, जाहिर सिकंदर, चेयरमैन पाक मीडिया जहांगीर खान, सदर नूरुल हसन गुजर, मेंबर एग्जीक्यूटिव कौंसिल अदिया वहाज और सीनियर सहाफ़ी मुसरत खलील ने अपने अपने खिताबात में बेहतरीन लीग मुनक्किद करवाने पर किंगडम स्पोर्ट्स और लीग इंतजामिया को मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हम जीतने वाली टीम के साथ साथ रनअप टीम को भी उनकी मेहनत पर मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने आखिरी गेंद तक मुकाबला किया। और पाक मीडिया के मेंबरान नायब सदर फहद रफीक खोकर, जॉइंट सेक्रेटरी आतिफ अली वट्टू और मेंबर एग्जीक्यूटिव कौंसिल हसन बट समेत दीगर ने भी बेहतरीन लीग मुनक्किद करने और दयार गैर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देश जैसा माहौल फराहम करने पर मुबारकबाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों वाहिद, अनवर, आतिफ लाहौरी, शानी, ज़िशान और दीगर को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात दिए गए। सुमेरा अजीज और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की खुसूसी शिरकत पर उनको एजाज़ी ट्रॉफी पेश की गई। मक्का मुकरमा से आतिफ अली वट्टू, दुनिया देख ली अब फलाही काम मेरी जिंदगी का मिशन है। इस वक्त तक दर्जनों पानी स्कीमें और दीगर फलाही काम कर चुका और मजीद कुछ काम जारी हैं। मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी गुलाम हुसैन। मक्का में मुकीम जिला मानसेहरा तहसील बालाकोट की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चेयरमैन गुलाम हुसैन वेलफेयर ट्रस्ट हाजी गुलाम हसन ने गुज़िश्ता रोज़ पाक मीडिया के सदर नूरुल हसन गुजर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुनिया के तमाम शौक पूरे कर लिए, अब मेरी ज़िंदगी का मिशन फलाही काम करना है और अपने तहसील के भाइयों की फलाह बहबूद के लिए पेश रहना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पूरी तहसील में दर्जनों पानी की स्कीमें और हैंड पंप लगा चुका हूँ और इसी तरह मसाजिद और दीगर काम भी ऐसे किए हैं जिनकी तशहीर करना मुनासिब नहीं समझता। जो करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासत में आने का ना सोचा कभी और ना ही कोई इरादा है और मैं अपने ज़िला मानसेरा और बालाकोट से मुंतखब नुमाइंदों से भी ये दरख्वास्त करूँगा खुदारा बकरियाल सिटी का मसला फौरी हल किया जाए और बालाकोट हस्पताल की इमारत तामीर करवाई जाए ताकि हल्के के लोगों को सेहत की सहूलत मैसर हो सके।